Maui's Kite by Thomas Anthony. The story Maui's Kite is written by Thomas Anthony, who is also known as Tommy D. Paola. He was born on September 15, 1934, and recently he died in March 30, 2020. Okay, so basically his stories are for the children और उनके जो स्टोरीज से चिल्ड्रन को बहुत सारी नॉलेज मिलती है, उनको बहुत सारा यू कैन से he nurtured the knowledge of the children, and he received the Children's Literature Legacy Award for the lifetime contribution to American children's literature in 2011. Okay, so now let's start the story. Maui's Kite. Long ago in Hawaii, people told stories to explain the wonders of nature. This story is about Maui, who wanted to tame the winds. So this story is about a Hawaii. Hawaii is a place, I think, in Japan. Okay, so people told stories to explain the wonders. Wonders means कि nature में जो भी चीज़ें होती हैं, sometimes it is very hot, sometimes it is cold, sometimes suddenly windy हो जाता है. तो नेचर्स के वंडर के बारे में बहुत सारी स्टोरीज पहले के लोग बताते थे. तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट मावी. Why this is star here? So star means you can see to how to pronounce this word, pronounced as Maui. So that is why it is starred here. So this story is about Maui, who wanted to tame the wind. What is the meaning of tame? Tame means to control, make something easy to control. तो हम सिंपल वे में बोल सकते हैं to control. तो वो एक ऐसे बॉय की स्टोरी है जिसने विंड को कंट्रोल करना, who wanted to, जो विंड को अपने कंट्रोल में करना चाहता था. तो let's start this. One morning, Maui decided that he had to build a kite. And what a kite he built! His mother gave him her largest, strongest piece of cloth. For the cross pieces, he used sticks of bamboo, and he cut branches from the olona shrub to make a strong rope. So one morning, Maui, the boy, he decided that he had to build a kite. उसको एक kite बनानी है, build करनी है. And what a kite, उसने मतलब that is here what is exclamation mark, exclamatory है कि what a kite, उसने जो kite बनाई थी वो क्या kite थी. It was not a normal kite. उसकी kite बहुत ही बड़ी और बहुत ही strange kite थी. His mother gave him her largest and strongest piece of cloth. उसकी मदर ने उसको largest और स्ट्रॉन्गेस्ट पीस दिया था अपने पास, जो उनके पास क्लोथ का था, सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस दिया था क्लोथ का. तो दैट काइट वॉज मेड अप ऑफ क्लोथ. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दैट वॉज अ स्ट्रॉन्गेस्ट काइट. क्लोथ की बनी हुई है, पेपर की नहीं बनी है, तो कितनी हैवी होगी. फॉर द क्रॉस पीसेस, क्रॉस पीसेस मीन जस्ट लाइक ये दिस इज क्रॉस पीसेस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस पीसेस? स्ट्रिक्स क्रॉस टुगेदर टू फॉर्म द फ्रेम ऑफ द काइट. तो इस तरीके से काइट को फ्रेम करने के लिए उसने बैम्बू का यूज़ किया था. बैम्बू इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट. वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे वो होल्ड कर सकता था. एंड ही कट ब्रांचेस फ्रॉम द ओलोना श्रब. व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ओलोना श्रब? अ हवाईयन प्लांट नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग बाग. मतलब उसने उसके श्रब के बाग का यूज़ किया था. उसके बाग जो छाल होती है पेड़ की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसको यूज़ किया था टू मेक रोप. कि इतनी हैवी काइट के लिए हैवी रोप की भी ज़रूरत होगी, तो उस रोप से मतलब सो दैट कि वो काइट को फ्लाई कर सकें. Mavi's kite was a work of art. He told himself, I must get a special wind to fly my kite. I'll go to the keeper of the winds. She will let me have a perfect wind to make my kite fly really high. Then Mavi's kite was a work of art, means it was totally a creative work of art मतलब वो totally creative था. उसने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके काइट बनाई थी. तो एक कह सकते हैं कि आर्ट थी उसके अंदर, एक कला थी उस काइट को बनाने में. उसने अपने आप से कहा, ही टोल्ड हिमसेल्फ, आई मस्ट गेट अ स्पेशल विंड. मतलब मेरी काइट को फ्लाई करने के लिए एक स्पेशल विंड की नीड होगी. इट इज़ नॉट सो ईजी काइट. वो इतनी स्पेशल ये ऐसी वैसी आम काइट, कॉमन काइट नहीं है कि कोई भी विंड से, तो एक स्पेशल विंड की नीड होगी. सो आई विल गो टू द कीपर ऑफ द विंड एंड शी विल गिव मी द परफेक्ट विंड टू फ्लाई माई काइट रियली हाई. वो मेरी काइट को फ्लाई करने में हेल्प करेंगी खूब ऊंचे तक, ऊंचे तक. His friends happily gathered around him to help him carry his kite to the keeper of the winds. As the group paraded through
the village, everybody left their work and came to watch. Then क्या हुआ कि उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने वो सब गैदर्ड हो गए हैप्पीली, और उन लोगों ने उस काइट को कैरी करने में हेल्प की, क्योंकि वो काइट इतनी हैवी थी कि वो अकेले किसी से कैरी नहीं हो सकती थी। वो सब कीपर ऑफ द विंड्स के पास जाने लगे। जब पूरा ग्रुप परेड कर रहा था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परेड? वॉकड इन ए लार्ज ग्रुप इन एन ऑर्डरली फैशन टू सेलिब्रेट। जैसे मार्च पास्ट में होता है परेड देखते हैं, या 26 जनवरी को हम लोग परेड देखते हैं, तो जब पूरा ग्रुप एक साथ एक ही वे में मूव करता है, तो इसी तरीके से वो क्या कर रहे थे, उन लोगों ने काइट को होल्ड किया था और एक साथ वो लोग जा रहे थे टू द कीपर ऑफ द विंड। तो जितने विलेजर्स थे, विलेज में जितने भी लोग थे, वो अपना वर्क छोड़ के उनको देखने लगे कि व्हाट इज़ देयर एग्जैक्टली, ये क्या है, कहाँ पे जा रहे हैं लोग। When the group finally approached the Cape of the Winds, they could see the keeper of the winds sitting by the entrance. जब पूरा ग्रुप approach means reached, came near means reached. जब पूरा ग्रुप केव पर पहुंचा, केव ऑफ द विंड जहाँ पे विंड का केव था, तो उन्होंने देखा कि कीपर ऑफ द विंड एंट्रेंस मतलब गेट पर ही सिटिंग बैठी है। ओ कीपर ऑफ द विंड्स, क्राइड मावी, please bring Ipu Iki, the small god that holds the gentle breezes, and let us fly our kite. Then उसने इपू कीपर ऑफ द विंड से रिक्वेस्ट की, ओ कीपर ऑफ द विंड प्लीज़ ब्रिंग इपू इकी। इपू इकी क्या थी? एक स्मॉल गॉड थी। गॉड मीन्स लौकी की सब्जी इसको बोलते हैं, फ्लैशी वेजिटेबल विद, तो एक लौकी की शेप की थी, जिसका वो लौकी जैसी वो गॉड थी जो जेंटल ब्रीज को होल्ड करती थी, मतलब उसके अंदर जो है ब्रीज थी, एंड उससे हमारी काइट फ्लाई हो सकती है। यू कैन सी, ये देखिए, इट इज़ जस्ट लाइक ए शेप ऑफ द गॉड, और वो ओपन कर रहे थे तो उसमें से विंड निकल रही है। The keeper was a wise old woman. She knew that the gentle winds of Ipu Iki would play kindly with the boy. So she went into her cave and returned carrying a small gourd and singing her song. तो कीपर जो थी, that was a wise and old woman थी, wise old woman थी, और उन्हें पता था कि इपू इकी जो है वो परफेक्ट विंड है बॉय के काइट को फ्लाई करने के लिए। सो वो केव के अंदर गई और वो स्मॉल गॉड को लेके आई और उन्होंने अपने सॉन्ग को सिंग किया। What was the song? O wind, soft wind of Hilo, wind from the god of everlasting winds, come from Ipu Iki. O wind, soft wind of Hilo, come gently, come mildly. तो उन्होंने ये सॉन्ग गाया, सिंग किया, जिससे कि वो विंड बाहर आ जाए। सिंस इसमें जेंटल विंड थी तो उन्होंने सॉफ्ट विंड ऑफ हीलो बोला। सॉफ्ट विंड फ्रॉम द गॉड ऑफ एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मीन्स कंटिन्यू फॉर एवर, कभी ना ख़त्म होने वाली ना। तो प्लीज़ बाहर आओ और इस बच्चे की हेल्प करो। द lid of the god began to stir and the keeper carefully opened it. Slowly the soft wind of Hilo drifted out and tugged at the kite. Maui let out some cord and he and his friend cheered as the kite soared like a great bird over the sea. जो लेड था वो धीरे धीरे स्टर करने लगा, मतलब घूमते हुए घूमने लग गया, और जो कीपर ने धीरे धीरे उसको ओपन किया। जैसे विंड जो है बाहर आने लगी, कोशिश कर रही थी, तो वो घूमते घूमते स्टर करने लगा, तो कीपर ने उसको ओपन किया और स्लोली जो हीलो की विंड थी, सॉफ्ट विंड, वो ड्रिफ्ट हो गई। ड्रिफ्ट मीन्स कम आउट, स्लोली एंड स्टीडली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो बाहर आने लग गई और काइट के संग टग, मतलब काइट पर टकराने लगी। जब काइट पर विंड टकराने लगी तो मावी ने क्या किया, अपने कॉर्ड मतलब अपनी डोर को थोड़ा लूज़ किया, लेट आउट मतलब लूज़ किया, और उसके फ्रेंड्स बहुत खुशी से चीयर्ड करने लगे, हैप्पी हो गए, और काइट जो है सोर्ड लाइक अ ग्रेट बर्ड, सोर्ड मीन्स रोज हाई इनटू द एयर, काइट जो है एकदम ग्रेट बर्ड की जैसे सी के ऊपर वो फ्लाई करना स्टार्ट कर दी। द कीपर स्टूड साइलेंटली एंड लुक्ड ऑन विद ए स्माइल. After a while she said, "That's enough for today. The wind should not be taken for granted. They will respect you if you respect them." Then after some time keeper said that it is over and that's enough for today. हमें इसको बहुत ज़्यादा granted नहीं लेना चाहिए. Taken as granted means accepted and treated in a careless manner. मतलब हमको किसी भी चीज़ को carelessly use नहीं करना चाहिए. Winds हमें तभी respect करेंगे जब हम उनकी respect करेंगे. After a few moments of silence, Maui nodded and said, "Yes, O keeper of the winds, call your winds back to you." Then after that, Maui said, "Yes, you are right. You can call your wind back to you." The woman now removed the lid from Ipu Iki. As the winds returned, the kite slowly dropped. Then woman ने क्या किया, वो उसने लिड को वापस ओपन किया और विंड
वापस इपू के अंदर चली गई। विंड जैसे रिटर्न हुई, काइट जो है गिर गई, क्योंकि जब हवा नहीं चलती तो काइट, आपको पता होगा कि हवा नहीं रहती तो काइट क्या होती, वो उड़ती नहीं है। Mavi reeled in the line, caught the kite and went back home with his friend while the keeper closed the lid. मावी ने अपनी काइट को क्या किया, रील किया, जो लपेटते ना, रील करते हैं, अपने काइट को उठाया और अपने घर चला गया जब तक कीपर लिड को क्लोज कर रहे थे। But Mavi was not content. He had seen how high his kite had gone, and he now wondered just how much higher it could fly. The next day, Mavi and his friends took the great kite and went back to the cave of the winds. लेकिन मावी क्या था, ही वॉज नॉट कंटेंट, करने मतलब वो साइलेंट नहीं था, वो पूरी रात प्रॉपर सो नहीं पाया और उसने देखा था कि उसकी काइट कितनी हाई तक जा सकती थी। सो नेक्स्ट डे वो मावी और उसके फ्रेंड्स वापस गए और वो चाहता था कि उसकी काइट और फ्लाई हो। तो नेक्स्ट डे उसके फ्रेंड्स वापस गए और केव ऑफ द विंड पे पहुँचे और उन्होंने इस बार बोला, ओ कीपर ऑफ द विंड, प्लीज़ ब्रिंग इपू नुई, गॉड ऑफ द फ्लोर, 4 ग्रेट विंड्स। क्राइड आउट मावी। उसने इस बार बोला कि मुझे इपू नुई चाहिए, मुझे इपू नुई लाओ जो 4 ग्रेट विंड्स को कैरी करती है। द विंड्स ऑफ इपू इकी वर एनफ मावी, शी रिप्लाइड, डोंट यू रिमेंबर व्हाट आई सेड टू यू, यू मस्ट रिस्पेक्ट द विंड्स, स्पेशली द 4 ग्रेट विंड्स। तो द कीपर सेड कि द इपू इकी की विंड दैट इज़ एनफ फॉर यू, एंड डोंट यू रिमेंबर, मैंने तुमसे क्या कहा था, आई टोल्ड यू कि यू मस्ट रिस्पेक्ट द विंड, और स्पेशली 4 ग्रेट विंड्स। 4 ग्रेट मीन्स वो जो है 4 डायरेक्शन की विंड्स हैं, तो तुम्हें तो उसको स्पेशली रिस्पेक्ट करनी होगी, यू हैव टू रिस्पेक्ट। बट आई एम स्ट्रॉन्ग एज अ 4 ग्रेट विंड्स, सेड मावी, एंड ही बिगैन टू चैंट। लेकिन मावी को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। उसने कहा कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं जितनी 4 ग्रेट विंड स्ट्रॉन्ग हैं, और इतना क्या कि उसने वो चैंट, मतलब वो जो विंड को कॉल करने का जो सॉन्ग था वो उसने चैंट करना स्टार्ट कर दिया, वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओ 4 ग्रेट विंड्स, माइटी एज द गॉड, विन फ्रॉम द गॉड ऑफ एवर लास्टिंग विंड, कम फ्रॉम इपू नो स्ट्रॉन्ग विंड, चर्निंग विंड, हेजन एंड कम टू मी। चर्निंग मीन्स मूविंग राउंड एंड राउंड रैदर वायलेंटली, मतलब तुम चर्न करते हुए और जल्दी से, हेजन में मतलब जल्दी से बाहर आ जाओ। From inside the cave came a mighty roar. The keeper ran towards the entrance, but she was too late. The north wind and east wind pushed her over and snatched the kite from the hands of Mavi's kite friend. इतनी देर में क्या हुआ कि केव के अंदर से एक आवाज़ आने लगी। कीपर जब तक गए तब तक बहुत लेट हो चुका था, और नॉर्थ विंड और ईस्ट विंड जो है वो उसको पुश करते हुए और काइट तक पहुंच चुके थे, मतलब काइट जो है हवा में उड़ना स्टार्ट कर दी थी। Mavi's kite was swept far out over the sea. He laughed with delight when he saw how far his kite had gone, and at the keeper who was struggling vainly to put the lid back on Ipu Nui. Then the west wind and south wind howled out of the gourd and knocked it from the woman's hand. मावीज़ काइट जो है वो सी के ऊपर तक बहुत दूर तक उड़ना स्टार्ट कर रही थी। वो बहुत खुश हो गया था और बहुत हैप्पी था, डिलाइट था कि उसकी काइट कितनी दूर तक जा रही है। और जो कीपर थी वो विंड को वापस लिड के अंदर पैक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल मीन्स ट्राइंग विदाउट सक्सेस। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी और लेकिन वो स्ट्रगल नहीं कर पा रही थी, वो उसको अंदर लिड के अंदर नहीं कर पा रही थी। तो इतनी देर में वेस्ट विंड और साउथ विंड भी आई और मतलब गॉड के अंदर से निकली और वुमेन्स के हैंड को नॉक करते हुए वो एकदम मतलब छूते हुए वो बाहर निकल गई। द काइट वेंट एज हाई एज द कॉर्ड वॉज लॉन्ग एंड देन इट टग्ड फियर्सली एट द कॉर्ड. The cord began to hum in the wind and the kite disappeared into the darkening cloud. फिर काइट क्या हुई, काइट बहुत दूर तक जाने लग गई, जितनी दूर तक कॉर्ड, जितना लंबा कॉर्ड था उतनी दूर तक तो गई। फिर जो कॉर्ड के साथ फियर्सली टक टक, मतलब वो चीना झपटी टाइप का, जैसे विंड इतनी तेज़ चल रही थी तो वो होल्ड नहीं कर पा रहा था उसके कॉर्ड को, उसके डोर को ना। और इसके बाद काइट जो है वो कॉर्ड जो उसके हाथ से छूट गया और काइट डार्कनिंग क्लाउड में, अंधेरे में कहीं डिसअपियर हो गई। Thinking that he was in control, Mavi called out, "O wind, mighty as a god, return to Ipu Nui." But of course, the winds were beyond his control. They raced stronger and stronger until the cord attacked to the kite snapped with a mighty crack. Mavi almost fell backwards. The kite sailed over the mountain, never to be seen again.
देन मावी थिंक कि उसने क्या है वो विंड के ऊपर कंट्रोल किया है, तो उसने विंड को ऑर्डर दिया कि नाउ यू कैन रिटर्न टू इपू नोई। लेकिन विंड्स तो उसके कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी, क्योंकि वो 4 ग्रेट विंड्स थी ना, वो उसके कंट्रोल के बाहर थी। वो और तेज़ हो गई, रेज स्ट्रॉन्गर में ब्लू फोर्सफुली, वो और तेज़ से ब्लू करने लग गई, स्ट्रॉन्गर। और उन्होंने फाइनली कॉर्ड पे अटैक किया और मावी जो है पीछे की ओर गिर गया, फेल बैकवर्ड। और काइट जो है माउंटेन के ऊपर ऐसी चली गई कि दोबारा वो दिखाई नहीं दी। The winds continues to rage over the entire island. A heavy rain sent people scurrying in all directions. The winds had proved who was stronger. और विंड्स तो बहुत तेज़ हो गई पूरे आइलैंड में, बहुत तेज़ रेन स्टार्ट हो गई। पीपल क्या हो गए, इधर उधर भागने लगे, रनिंग इन क्विक शॉर्ट स्टेप। जिधर हो रहा था उधर हर डायरेक्शन पीपल भाग रहे थे। और विंड जो है प्रूव कर दिया कि कौन स्ट्रॉन्गर था, मावी स्ट्रॉन्गर था या विंड स्ट्रॉन्गर था। At last, the keeper of the winds pounced on Ipu Nui and took back it into the cave. She worked all through the night, gently coaxing the winds back into the gourd. फिर फाइनली क्या हुआ, कीपर ऑफ द विंड वो इपू नोई को फाइनली बैक करने में सक्सेस हो गई। उन्होंने फुल नाइट कोक्स किया। कोक्सिंग मीन्स परसुएडिंग समबडी टू डू समथिंग बाय टॉकिंग इन ए काइंड एंड जेंटल वे। वो फुल नाइट काइंड और जेंटल वे में विंड से बात करती रही और फाइनली उन्होंने विंड को इपू नोई के अंदर वापस कॉल कर लिया। ओके, फाइनली द स्टॉर्म एंडेड। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मावी ही हु हैड ब्रॉट द ग्रेट स्टॉर्म। फाइनली स्टॉर्म बंद हुआ और पीपल ने मावी को कॉल करना स्टार्ट कर दिया, ही हु हैड ब्रॉट द ग्रेट स्टॉर्म। यही वो पर्सन है जो स्टॉर्म को लेके आया था। हिज फ्रेंड्स लुक द अदर वे व्हेन मावी केम टू विजिट। जब मावी उनके अपने फ्रेंड्स के पास जाता था, उसके फ्रेंड्स उसको छोड़ के चले जाते थे। Finding himself alone with nothing to do, Mavi built another kite. It was smaller than the first. He flew it near his home when there was no one else about. He would tie the kite to a rock and study its movement in the sky. जब वो एकदम अकेला हो गया, अलोन हो गया, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने एक दूसरी काइट बनाई जो पहले से बहुत छोटी थी। ठीक, एंड देन ही फ्लू। वो उसको क्या करता था, अपने घर के पास ही उड़ाता था, और जब कोई नहीं रहता था तो वो देन ही टाई इट टू ए रॉक और उसकी मूवमेंट को स्टडी करने की कोशिश करता था। सून ही कुड टेल व्हेन द वेदर वुड बी फाइन और स्टॉर्मी। वन डे ही नोटिस सम मैन गोइंग ऑफ टू द फील्ड। वो काइट की मूवमेंट को स्टडी करते करते वेदर परफेक्ट बन गया था, वेदर फोरकास्टिंग में परफेक्ट हो गया था। और वन डे उसने नोटिस किया, उसको ये पता चल गया था कि वेदर कब फाइन होता है और कब स्टॉर्मी होता है। तो एक दिन कुछ मैन जो हैं फील्ड में जा रहे थे। देन ही टोल्ड देम, इट विल रेन टुडे, कॉल्ड आउट मावी, टुमारो विल बी द बेटर डे टू वर्क इन द फील्ड। उसने उन लोगों को बोला कि इट इज़ नॉट अ गुड डे फॉर टुडे, आज वर्क करने के लिए अच्छा दिन नहीं है, आज रेन होगी, आप लोग कल जाना। द मैन जस्ट स्काउल्ड एट हिम बट सून इट डिड बिगैन टू रेन एंड द मैन केम रनिंग बैक टू द विलेज लुकिंग इन अमेजमेंट एट मावी। जो मैन थे उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, स्काउल्ड किया, फ्राउंड मतलब गुस्से में देखते हुए चले गए। लेकिन बहुत जल्दी बारिश होने लग गई और सब के सब बहुत आश्चर्य से, वंडर के साथ, अमेजमेंट के साथ वापस आए और मावी को देखने लगे कि इतना एक्सपर्ट वो कैसे हो गया। Another day, Mavi warned a group of women that their clothes would be blown away from the drying place because his kite told him that there would be a storm that day. Later, they were out there in their yard, chasing their clothes which were blowing about in the storm. Another day, उसने कुछ women के ग्रुप को वार्न किया कि today इज़ अ स्टॉर्मी डे, तो आज अपने क्लोथ्स बाहर मत फैलाइए। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और बाद में उसने देखा कि वो जो लेडीज़ थी वो अपने क्लोथ्स के पीछे पीछे भाग रही थी, चेज़ मतलब, क्योंकि उनके क्लोथ्स जो हैं वो इधर उधर उड़ रहे थे इन द स्टॉर्म। In time, the village people began to depend on Mavi and his kite. He taught them how to tell from the dancing movements of the kite which days would be good for planting or fishing or drying clothes. फिर धीरे धीरे जो पीपल थे वो मावी पे टोटली डिपेंड होने लग गए। वो उनको बताता था कि जो मतलब काइट के मूवमेंट से ये पता चल जाता था कि कौन सा दिन प्लांटिंग के लिए अच्छा है, फिशिंग के लिए अच्छा है या क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए अच्छा है, और उससे के बताने के अकॉर्डिंग ही वो लोग वर्क करते थे, क्योंकि वो एक टोटली एक्सपर्ट बन चुका था।
Okay, people now started calling him teacher of the weather. Even the keeper of the winds no longer shunned him, and Maui had learned his lesson. Never again did he call for the winds of Ipu Iki or Ipu Nui. धीरे धीरे जो लोग थे उन्होंने उसको टीचर ऑफ द वेदर कहना स्टार्ट कर दिया था, और कीपर ऑफ द विंड भी उससे बहुत हैप्पी थी। एंड मॉवी ने भी एक लेसन सीख लिया था कि कब, और उसने कभी भी उसके बाद कभी भी इपू इकी या इपू नोई के विंड को कॉल नहीं किया था। I hope you understand the lesson and you like the lesson. Thank you.